हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का पूरा नाम है लाइट डैश रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वो चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 5 ऑलरेडी साइंस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन केस आपको वो वीडियो देखना है तो लेट्स स्कोर फुल में जाके आप देख सकते हैं। तो वेलकम है आपका अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? An object reflects light that fall on it. This refracted light, when received by our eyes, enables us to see things. Means, suppose you have some object, ठीक है? So let me draw over here. Suppose you have this some stone maybe, and light is coming from any of the source. Either it is sun or some another object. So light will fall on this, and these lights are parallel. When this light fall on the stone and it get reflected back, correct? And suppose we are standing here, our eyes is something like this. So when light fall on the object and that light is get reflected back the object and it comes to our eye, we are able to see the object, correct? So suppose some object is dark. Dark means let the object be of any color and there is no light. As there is no light, light is absent, this object cannot reflect any of the light and our eyes are not receiving any light from this object, and that is why we are not able to see the object in the dark, or you can say in the night. When there is no light, no reflection of light and nothing is coming to our eyes from the object, that is why we are not able to see the object. Clear? Okay, so this is about reflection. We know object, suppose this is opaque object and light travels in a straight line. So suppose light is coming from here. We are seeing the shadow of the object over here of the same size. This is not same size. Let me draw it again. So we will see shadow over here in the opposite direction of the object, correct? So suppose this is A object, B is its shadow. So it means we say the light is traveling in a straight path, and as there is an opaque body, it is giving its shadows, correct? Okay. So this says that light moves in a straight line. How? Just see. Suppose this is the black line is a ray, and if it is not traveling in a straight line, it is able to bend. What will happen? Light will move like this and it can move over here. So there will not be shadow. अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी तो वो बेंड हो जाएगी. बेंड हो सकती है, इसका मतलब उसका शैडो नहीं बनेगा, करेक्ट? So if we are getting the shadow, इससे ये पता चल रहा है कि light is moving in a straight line. Now, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है, let me clear the board. Now, suppose there is an object and light is traveling in a straight line. We know light travel in a straight line. So suppose this is opaque object, light is coming from here. So as light is coming from here, it will form a shadow over here. So it's as the shadow is of the same size as the object, here we will get the same size object. Object, if it is creating the same size shadow, it means light is traveling in a straight line. ओके, देखिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं होती तो क्या होती है? स्ट्रेट आती, ओपेक आने के बाद बेंड होके और फिर यहाँ ट्रेवल करती. सो जब लाइट अगर बेंड हो सकती तो यहाँ पे शैडो कैसे होता? शैडो होने के लिए ओपेक होना चाहिए, मतलब यहाँ लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए. दिस एरिया द लाइट शुड नॉट रीच. अब लाइट वहां पहुंच जाती तो देयर इज नो शैडो, ठीक है? So when we are getting the shadow or there is reflection, इससे ये पता चलता है कि light travels in a straight line. Now
कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो ओपेक है, ओपेक मतलब थ्रू विच लाइट इज नॉट ट्रेवल, थ्रू विच लाइट इज नॉट पासिंग, और यहां से लाइट आई। सो इसकी शेडो छोटी बनती है, सेम शेप की, बट द साइज इज स्मॉल। व्हाई? कॉर्नर से लाइट बेंड हो गई, लाइट ऐसे आई और थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है। इस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, करेक्ट। सो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk on a straight line. तो उस समय वो straight line ना होके थोड़ी bending हो जाती। देखिए straight आई, let me use the another color, ये straight आई और ये bend हो गई, दिख रहा है bending, तो straight line में नहीं है, इसको हम diffraction बोलेंगे। Diffraction is not in your syllabus, it is in higher classes. You will study this in class 12th of CBSE, and state board I think it is in class 11th. So, हम अभी 10th में सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जो ये बोलता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम बेंडिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वी विल थिंक कि लाइट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी फिनोमिना से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। कौन सा फिनोमिना से? लाइट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का जो एप्लीकेशन है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, और इन कंसेप्ट को यूज करके फर्दर हम देखेंगे कि नेचर में ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं, जैसे कि रेनबो क्यों बनता है, फिर उसके बाद वाई स्टार ट्विंकल, सनराइज जब होता है या सन सेट होता है तो हमें वो रेड क्यों दिखता है, एसेट्रा एसेट्रा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की हेल्प से हम इन फिनोमिना को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ फॉर रिफ्लेक्शन देयर आर सम लॉज which we are studying from our 8th grade. So what are laws of reflection? Laws of reflection says the angle of incidence is equals to the angle of reflection. That's first law. Let me draw the figure. Suppose this is a mirror. ठीक है? So this is reflecting surface, and I'll name them as X and Y. XY is a reflecting surface or mirror or anything. At any one point, draw a perpendicular. The perpendicular drawn is suppose MN. So the perpendicular on reflecting surface, we say it normal. Okay? So the perpendicular to the reflecting surface is known as normal. ठीक है? Now, where the light is falling, ठीक है, that point है ना, ओके बताती हूँ। सपोज ये आपकी किसी बल्ब या सन या कहीं से एक रे आ रही है। जो लाइट होती है, इट ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ रेज। फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू स्टडी इट वी टेक जस्ट अ वन रे, ठीक है। सो सपोज वन रे इज फॉलिंग एट अ पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। O is known as point of incidence. Suppose ये light AB है, AB is a ray of light which is falling on the surface XY, which is reflecting surface, and where it is falling, XY पे suppose point O पे AB fall हो रही है, so A is O is known as point of incidence. So suppose this angle, कौन सा एंगल? नॉर्मल एंगल। नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब मिरर पे रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेट मी ड्रॉ इट विथ रेड कलर, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, करेक्ट। तो नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम आर बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो सपोज दैट इज सी and D light. Clear? So AB is incident ray, CD is reflected ray. इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर? Okay, so the first law is
Angle of incidence which is I here, angle of reflection which is R, they both are equal. मतलब हमेशा I equal to R होगा. That is first law. Second law क्या बोलता है? The incident ray, the normal to the mirror. Normal मतलब अभी हमने बताया sorry, normal to the mirror at the point of incidence. Point of incidence यहाँ पे क्या है? O. Normal क्या है? Mn. तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है mn, वो mn इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं. अब इसका मतलब क्या है? प्लेन मतलब ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर शीट, तो वो हॉरिजेंटल हो सकती है कुछ. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज माय प्लेन. ये प्लेन है तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, या हॉरिजेंटल, इट कैन बी एनीथिंग. करेक्ट. तो ये जो प्लेन है, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बाहर नहीं चली जाएगी, इट विल बी इन द सेम प्लेन. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही रेक्टेंगुलर शीट पे आएंगे. अगर आपने शीट ऐसी रखी है और इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में होगी. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बाहर नहीं आएगी और इट इज ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. So incident ray, reflected ray, the normal, they all lie in the same plane. वो एक ही शीट पे अकोमोडेट हो जाएंगे. ठीक है, इतना क्लियर. और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, हम प्लेन मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू स्फेरिकल सर्फेसेस एज वेल. अगर आप कर्व्ड दे देते हैं मिरर को, कर्व्ड मिरर है, तो उसके लिए भी वो उतने ही वैलिड रहेंगे जितने प्लेन मिरर के लिए हैं. हम आगे की स्लाइड्स में स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स. देखते हैं कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. ठीक है. तो चलिए एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज प्लेन मिरर, है ना, और एक ये एक्सिस है जिस पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया. सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ओके. सो ये इसका सपोज राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है. ठीक है. ओके. सो प्रॉपर्टी क्या होगी? फर्स्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट. वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो मिरर के पीछे बनती है. मतलब हमें दिखेगा कि इमेज जो है वो यहां बन रहा है, समथिंग लाइक ऐसा. एक सेकेंड, ये आपको इमेज यहां दिखेगी. ठीक है, मिरर के पीछे. बट एक्चुअली सपोज ये मिरर है जो आपके मिडिल ऑफ द रूम रखा है, और अगर आप मिरर के पीछे जाके देखेंगे देयर इज नथिंग, कुछ है नहीं, लेकिन सामने से देखने पे लग रहा है कि मिरर के अंदर एक और हमारे जैसा पर्सन खड़ा हुआ है. तो इसको बोलते हैं वर्चुअल. दोज इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते. स्क्रीन पे कैसे नहीं ले सकते? स्क्रीन मतलब एक सिंपल प्लेन बेडशीट समझिए. तो अगर आप बेडशीट यहाँ रखेंगे तो इमेज ही नहीं बनेगी, और बेडशीट यहाँ रखेंगे तो एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ है ही नहीं. तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल. मतलब लग तो रहा है कि है बट एक्चुअली इट इज नॉट देयर. क्लियर? ओके. सो वर्चुअल इमेज बनती है तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? पहली प्रॉपर्टी बोल रही है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट मतलब अगर कोई चीज स्टैंडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा है तो इसकी इमेज भी ऐसे बनेगी. इट इज नॉट इन्वर्टेड. ये इन्वर्टेड होता है. इरेक्ट उल्टा कर दीजिए तो इन्वर्टेड. ठीक है. तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट. दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तो आपकी इमेज भी 5 फीट 2 इंच की दिखेगी. अगर आप यहाँ पे आपकी विड्थ जो है, सपोज आप मोटे हैं या पतले हैं, जैसे भी आपकी विड्थ सपोज 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी इसकी विड्थ 50 सेंटीमीटर होगी. दैट इज सेकेंड. इमेज फॉर्म्ड इज एज फार ऑब्जेक्ट एज
द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि सपोज आप मिरर से 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, मिरर से आपकी डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी 2 मीटर होगी। ये क्लियर? अगर आप ऑब्जेक्ट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इमेज भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे मिरर के अंदर दिखेगी, तो दैट इज ए सेम डिस्टेंस। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली मतलब कि देखिए, मैं अगर अपना राइट हैंड ऊपर करती हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं और आप भी सेम डायरेक्शन वाला अगर हैंड उठाएंगे तो वो आपका लेफ्ट हैंड होगा, करेक्ट? तो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। मतलब अगर ये इसका राइट है और ये लेफ्ट है तो इमेज में उसका ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट। क्लियर? सो इट विल बी उल्टा। मतलब अगर आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो जो इमेज है वो अपना राइट हैंड रेज करती हुई दिखेगी, तो दैट इज लेटरली। लेटरली मतलब ऐसा, वर्टिकली मतलब ऐसा, उल्टा हो जाना। क्लियर? ओके, तो ये हो गया अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं? स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए सपोज आपने एक स्फीयर लिया है, ठीक है, ये स्फीयर जिसकी रेडियस आर है और ये हॉलो है। हॉलो मतलब इट्स नॉट सॉलिड, जैसे टेनिस की बॉल सॉलिड होती है और जो ये या स्माइली बॉल जो आपने देखा वो सॉलिड होती है। प्लास्टिक की जो बॉल आती है दैट इज हॉलो, अंदर कुछ नहीं, जस्ट शीट जो कर्व में टर्न किया हुआ है, दैट इज हॉलो स्फीयर। आपने एक हॉलो स्फीयर लिया और इसको ऐसे कट कर दिया, करेक्ट? तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये हॉलो है। सपोज ये पार्ट ए बी है और ए बी को उठा के आपने यहाँ साइड में रखा। अगर ये ग्लास का है, करेक्ट, तो ग्लास के वन साइड में इफ यू आर पॉलिशिंग तो वो मिरर का काम करता है। अगर ये प्लेन ग्लास का शीट है, इस पे आप यहाँ पॉलिश कर दें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, करेक्ट? सेम वे ये आपको जो कर्व्ड पार्ट मिला है इसका आप बाहर की तरफ पॉलिश कर दें या फिर इसी को अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, तो जहां आपने पॉलिश किया है, दिस बैक साइड यू हैव पॉलिश, तो फ्रंट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा जहां से वो रिफ्लेक्शन करेगा, करेक्ट? सेम वे सपोज ये फिगर 1, ये फिगर आपने यहाँ पॉलिश कर दिया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ बन जाएगा। वेयर यू हैव पॉलिश द अपोजिट साइड इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? ओके, तो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिगर 1 का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ है ना, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव की तरह, देखिए ऐसा केव, पीछे आपने पॉलिश किया है, फ्रंट पार्ट केव की तरह है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम देखते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव की तरह है, इनवर्ड प्रेस्ड है अंदर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। दूसरे फिगर में देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट की तरफ है तो वो आउटवर्ड है, बल्ज है सेंटर पे, करेक्ट? आउटवर्ड। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ऐसे आपके दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। So the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or curved outward. So a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, मतलब अगर ऐसा है, ये पीछे पॉलिश है और ये इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इनवर्ड मतलब जहां पॉलिश है वो इनसाइड है, घुसा हुआ है, तो दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। दूसरे में देखिए कि हमने उसको इनवर्ड पॉलिश कर दिया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? आउटवर्ड, तो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? और हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अभी हम फ्यू मिनट्स में वहां पे पहुंचेंगे, तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हम बात करते हैं तो हमेशा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दैट शुड बी टुवर्ड्स लेफ्ट, सेम वे ये शुड बी लेफ्ट।
प्लेन मिरर है तो आप इसको ऐसा नहीं रख सकते क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट में हो गया। आपको पॉलिश्ड वाला राइट की तरफ रखना है सो दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम कुछ कंसेप्ट जिसके बेसिस पे सीखे हैं उसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज पहला वाला एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में ए दिया है, उसके नीचे 2 डैंगलर लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन इज कि इसका मिरर इमेज कैसा होगा, आइदर इट विल बी सेम, इट विल बी इन्वर्टेड और हाउ इट इज। सो क्योंकि ये वर्टिकली अगर आप लाइन खींचो तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इसका लैटरल इन्वर्जन होगा। बट क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, यहाँ ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 और 1 हो जाएगा, लेकिन दिखेगा तो सेम टू सेम ना, करेक्ट? तो देयर विल बी इन्वर्जन, लेकिन इन्वर्जन होने के बाद वो सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल होने की वजह से इन्वर्जन हमें दिखा ही नहीं, सो द इमेज विल बी सेम। तो जो भी वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू सिमेट्रिकल हैं, उनका इन्वर्जन सेम टू सेम होगा। क्लियर? ओके, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ये फिगर है ई, उसको जब आप मिरर इमेज के थ्रू देखोगे तो आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज करेक्ट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस विच वन विल बी द करेक्ट इमेज। तो मिरर इमेज क्या बोलती है, लैटरल इन्वर्जन, तो लेफ्ट का राइट हो जाता है। सपोज इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट यहाँ होना चाहिए, राइट यहाँ होना चाहिए, तो मतलब जो ये टीथ हैं दैट शुड टुवर्ड्स लेफ्ट। एक सेकेंड, एल लिखना चाहिए ना, मैंने एच क्यों लिखा है व्हेन आई डोंट नो। तो राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट वाला इन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, ये तो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग था, एक हम लिटरल न्यूमेरिकल कर लेते हैं। करेक्ट? तो चलिए देखते हैं। सपोज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, ये आपका प्लेन मिरर है, करेक्ट? ये इंसिडेंट रे है जो मिरर से 30 डिग्री एंगल बना रही है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री होगा? नो, देखिए ये एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये एंगल ए है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये मिरर का सरफेस और ये नॉर्मल, इन दोनों का एडिशन, मतलब ए प्लस आई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ए इज 30, तो आई कितना होगा, 90 माइनस 30 विच इज 60 डिग्री, मतलब इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। सो दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस का टेंजेंट इज √3। ठीक है, क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका टेंजेंट √3 है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री विद साइंस। कैसे करेंगे इसको? इजी है, आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं बताती हूँ। उन्होंने दिया है टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल इज √3, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो अगर tan 60 डिग्री है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। इसी में वो मॉडिफाई करके पूछ सकता है कि अगर tan I इंसिडेंट एंगल का टेंजेंट इज √3, व्हाट इज द एंगल विच रिफ्लेक्टेड मिरर, रिफ्लेक्टेड मिरर नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज will make with the mirror। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the angle reflected rays
reflected rays make with mirror। तो कैसे निकालेंगे? ये मिरर, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट एंगल हमारा कितना आया 60, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेट मी मार्क इट विथ रेड। रिफ्लेक्टेड रे इज दिस। तो ये मिरर से कितना एंगल बनाएगी? टोटल एंगल 90 नॉर्मल से, तो दिस इज 60, सो रिमेनिंग इज 30। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ये क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सपोज ये मिरर है, करेक्ट? ये नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल को मैं ग्रीन से बना रही हूं। इस पे एक पिन लगी हुई, जब मैंने इंसिडेंट एंगल बनाया तो इस पे एक मैंने पिन लगा दिया, पिन ए, ठीक है? तो जो पिन ए है उसके मिरर से जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर, करेक्ट? ओके। और जो ओरिजिन से, मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ, उससे वो डिस्टेंस है, देखिए ओ से पॉइंट ऑफ जो आपने पॉइंट इंसिडेंट रे पे पिन आपने ए लगाई है उसकी मिरर से हाइट 2 सेंटीमीटर है, और ओ और ए उसका डिस्टेंस सपोज 2√3 है, सपोज 4 सेंटीमीटर है, करेक्ट? ये समझा? ये लेंथ ओ ए लेंथ 4 है और ए एम लेंथ 2 है। तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर? ये क्वेश्चन आपको एंगल ढूंढना है, आएगा? ओके, तो ये आप कर लीजिए क्वेश्चन। इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी, मतलब रिफ्लेक्शन का पार्ट 2, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो कंसीडर दिस एज योर होमवर्क। नाउ let's understand some terms of spherical mirror. To understand the spherical mirror reflection and refraction, we need to understand some points related to it. ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बना कैसे, हमने देखा है फ्यू सेकंड बिफोर कि अगर ये स्फीयर है, देखिए मैं कॉर्नर पे लिख रही हूँ, देयर इज नो स्पेस। सो ये स्फीयर है जिसका सेंटर सपोज सी है। आप बोलोगे सेंटर को ओ लिखते हैं तो आपने ओ क्यों नहीं लिखा? आई विल टेल, लाइक थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो सपोज ये स्फीयर है जिसका सेंटर सी है, ठीक है? इसका मैंने एक छोटा सा पीस कट किया कहीं से, ये कट किया, ठीक है? ये पार्ट उठाया साइड में और इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, करेक्ट? सो दिस इज माय स्फेरिकल मिरर। क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मैंने लेफ्ट की तरफ रखा है, मतलब इनवर्ड है, तो इनवर्ड है मतलब ये क्या है? कॉनकेव मिरर, करेक्ट? ओके। तो ये जो आपने पोर्शन कट किया है ये लेंथ का, ये कैसे होगा? एक्चुअली ऐसे बाउल की तरह होगा, क्योंकि स्फीयर से कट किया है ना। इट इज नॉट लाइक दिस, एक्चुअली इट इज लाइक दिस, ऐसा, ऐसे बाउल की तरफ होगा, जो जिसका एक सेंटर होगा। इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक बीच में सेंटर होगा, करेक्ट? उस सेंटर को यहाँ पे हम बोलते हैं पोल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो देखिए, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? लेफ्ट की तरफ। वो कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। यहाँ ये इनवर्ड है, पीछे की तरफ पॉलिश है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, एंड इट इज नोन सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का भी आप देखेंगे तो इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर होगा यहाँ कहीं, उसको हम बोलेंगे पोल। तो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है इज नोन एज पोल, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ही पार्ट होता है, मतलब
ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कहीं बाहर नहीं है, इट इज ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो इट इज द पार्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये मिरर मैंने बना लिया कॉनकेव, या फिर इसी को अगर मैं इनवर्ड पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो ये दिस इज कॉन्वेक्स, करेक्ट। ओके, तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव, जो भी आपने पीस कहां से काटा था, स्फीयर से, ये जो स्फीयर है जिसका सेंटर सी है, इससे आपने मिरर कट किया, देन यू हैव पॉलिश्ड। तो जिस स्फीयर से आपने कट किया है मिरर, ये आपने मिरर कट किया, लेट मी मार्क इट विथ रेड, दिस इज द कट पोर्शन। तो ये इस गिवन स्फीयर का पार्ट है। तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने स्फीयर के सेंटर को सी लिया था, करेक्ट। तो ये मिरर आपने कट किया, मिरर आपने साइड कर दिया, लेकिन वो स्फीयर अभी भी एग्जिस्ट करता है जिससे आपने कट किया, कहीं ना कहीं से तो आपने कट किया, उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दीजिए कि जो कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, लेफ्ट की तरफ। कैसे पता लेफ्ट की तरफ, इसको आप ऐसे स्फीयर इमेजिनरी बनाएंगे तो इसका सेंटर लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ होगा। कॉन्वेक्स का देखिए, स्फीयर कहाँ बनाएंगे आप, ऐसे बनाएंगे ना, इसको ऐसा लेफ्ट की तरफ तो स्फीयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऐसा अगर कर्व है तो स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा पीछे की तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा। तो कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होता है, कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज ऑन द राइट हैंड साइड। एंड अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, इट इज आउटसाइड द मिरर, है ना। मिरर तो सिर्फ इतना है, इसके बाहर यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आउटसाइड, कॉन्केव के लिए वो लेफ्ट में होगा, कॉन्वेक्स के लिए वो राइट में होगा। इतना क्लियर? ओके, तो वही यहां लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर इसके सामने और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए पीछे होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ है, मतलब उसका फ्रंट लेफ्ट की तरफ है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे। इतना क्लियर? तो पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो मिरर का सेंटर, वो स्फीयर का सेंटर होता है जिससे हमने मिरर कट किया है। क्लियर? ओके ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखिए, अगर ये स्फीयर है जिससे हमने मिरर कट किया है, उसका ये सेंटर है दैट इज C, और मैंने एक मिरर कट किया उसका पीस, स्फीयर का पीस, जिसको मैंने सपोज ये वाले पार्ट को पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये कैसे होगा, कॉन्केव मिरर बन जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। अगर मैंने उल्टा पॉलिश कर दिया तो ये कैसे बन जाएगा, कॉन्वेक्स, करेक्ट। ओके, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट मी यूज द रेड कलर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका एक सेंटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, यस यस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पोल। तो जो पोल है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस लाइन को जो ज्वाइन करती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो मिरर के लिए हो गया, आप कहीं भी ज्वाइन करो तो वो रेडियस होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज फॉर्म्ड। देखिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is a part of some sphere. That sphere has some radius and उस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। सो दिस इज कैपिटल R। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये पोल P, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R। क्लियर? Okay. Now the fourth term is principal axis. तो principal axis क्या होती है, the line which passes through the
पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज याद रखिए कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा मिरर के पोल पे परपेंडिकुलर होती है। मतलब सपोज ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, आइदर कॉन्वेक्स, इसका पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, तो वो लाइन जो कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। बस 2 मिनट दीजिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए टेंजेंट होता क्या है। सपोज ये कर्व है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप एक लाइन खींचिए जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट ई पे टच कर रही है, तो इस लाइन ए बी को हम बोलेंगे टेंजेंट टू द कर्व। तो सेम वे अगर ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये पोल है, इस पे एक लाइन खींचिए जो मिरर को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। एक पॉइंट पे मतलब आपको ऐसा नहीं खींच देना है कि ये 2 पॉइंट पे, देखिए यहाँ और यहाँ कट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे टच करे, ये हो गया पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को जब आप ज्वाइन करेंगे और ये ए बी टेंजेंट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज सीपी एंड टेंजेंट विच इज एपी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? सो टेंजेंट क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है, यहाँ मैं टर्म का नाम लिखना भूल गई। इट इज प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, देखते हैं। सो जब सपोज ये मिरर है, मैं दोनों मिरर के लिए समझाती हूँ। ये कौन सा मिरर है आप बताइए मुझे, विच मिरर इज दिस? यस, कॉनकेव मिरर। तो मिरर पहचानना तो आ गया आपको, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है, तो वो ध्यान से एक बार पीछे जाके वीडियो वापस देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये कॉनकेव मिरर है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए ये बहुत सारी रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए ये रे आई एंड इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दूसरी रे आई, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो जितनी भी पैरेलल रे आ रही है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, करेक्ट। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो कॉनकेव के लिए हो गया। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, देखिए रेज पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई, रेज पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई, सेम वे यहां से पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई। तो ये रेज जो है वो स्प्रेड हो रही हैं, दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर वो मीट नहीं हो रही हैं तो पीछे एक्सटेंड करने पे कहीं ना कहीं तो मीट होंगी। अगर सामने स्प्रेड हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मीट होने वाली हैं, ओके। तो जिस पॉइंट पे वो मीट होती हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अगर आप यहाँ इस वाले मिरर के लिए यहाँ कहीं से देखते हैं, दिस इज योर आई, तो आपको ये कहीं मिरर के अंदर से आती हुई दिखती हैं। तो जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट दिखती हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नाउ आपके मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉनकेव के लिए राइट एक पॉइंट पे फोकस हुई, कॉन्वेक्स के लिए स्प्रेड क्यों हुई? तो चलिए ये टर्म भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर में क्या है कि जब लाइट आई, करेक्ट, ये लाइट आई तो एक्चुअली क्या हुआ, अंदर घुस गई, है ना, मिरर के अंदर घुस गई, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जाएगी, वो बेंडिंग कहाँ होगी, जहां उसका यहाँ आई, बाहर जाने का तो रास्ता नहीं है, तो ये अंदर की तरफ बेंड हुई, करेक्ट। तो ये यहाँ मीट हुई। अब कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में लाइट आई ऐसे, अंदर आने की जगह नहीं उसको, तो ये स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इसका और प्रिंसिपल है बट एज ऑफ नाउ आपको सिलेबस में नहीं है, तो इतना कॉम्प्लेक्स समझा के कोई मतलब नहीं इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल से, ठीक है, ओके। फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो चलिए मैं समझा ही देती हूँ, आप बोलोगे आधा समझाया टीचर ने, ओके। तो सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल
और ये फोकस, ये कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। ओके, तो हमने देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो टेंजेंट पे नॉर्मल होती है, करेक्ट। तो सेम वे अगर मैंने ये रेडियस खींचा तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच सकते हो, वो भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है। ये सर्कल वाले चैप्टर में है। तो अगर इस पे कोई रे आई पैरेलल, ये देखिए ये आई इंसिडेंट रे, जो ग्रीन कलर वाला है वो नॉर्मल है, करेक्ट, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी पॉइंट पे करो लाइन ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस है। और नेक्स्ट सपोज उसको ब्लू से ड्रॉ करती हूँ, जो ये ब्लू लाइन है दैट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे 90 डिग्री। अब देखिए इंसिडेंट रे आ रही है तो ये इंसिडेंट एंगल, करेक्ट। अब इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल की दूसरी तरफ जानी चाहिए, करेक्ट। तो देखिए यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब वो गई तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा नॉर्मल से, विच इज गोइंग टू बी इक्वल। लॉजिक समझा क्या? रे आई नॉर्मल से वो बेंड होगी और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल बनाएगी, है ना। तो वो कहाँ हुई, इनवर्ड बेंड हुई। सेम वे दूसरी पैरेलल आएगी यहाँ, इस पे मैं ग्रीन कलर का नॉर्मल खींचती हूँ विच इज दिस, और ये नॉर्मल की दूसरी तरफ, सपोज ये एंगल इंसिडेंट है तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, करेक्ट, ये तो ये एंगल आर होगा विच इज इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ये समझा क्या? ओके, तो इसलिए वो सेंटर की तरफ मीट होती हैं। कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट तो लेफ्ट से ही आएगी ना, ये लाइट आई इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को सेंटर से आप ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट, नॉर्मल। अगर ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल की दूसरी तरफ बनना चाहिए ना। तो ये इंसिडेंट एंगल, और लेट मी मार्क इट विथ रेड, रेड वाला नॉर्मल है, करेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड एंगल उसके दूसरी तरफ बनना चाहिए, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। इसलिए कॉन्वेक्स में लाइट स्प्रेड होती है और कॉन्केव में कॉन्सेंट्रेट होती है। इन मिरर के दूसरे भी नाम हैं। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग, क्योंकि वो लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्जिंग मिरर। इनके क्या नाम है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों ऐसा नाम है? कॉन्केव मिरर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा, कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को स्प्रेड करेगा, डाइवर्ज करेगा, इसलिए कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर भी इनके नाम है। इतना क्लियर अच्छे से? 100%? ओके ओके। नेक्स्ट हम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? हमने देखा, कैसे लिखूं, ओके, ये पोल है, करेक्ट, P इज पोल एंड C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन लाइन को जो ज्वाइन करता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑल द लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और जो रेस उसके पैरेलल आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट दैट इज एफ, जिसको हमने प्रिंसिपल फोकस में बोला। कॉन्वेक्स लेंस के लिए द रिफ्लेक्टेड रे लुक लाइक इमर्जिंग फ्रॉम अ फोकस, करेक्ट, ओके। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। सेम वे कॉन्केव के लिए ये रहा पोल, ये फोकस, दोनों के बीच को हम स्मॉल f से, दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ f, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? सपोज ये आपने स्फीयर है, इससे आपने कट करके ये मिरर बनाया, तो भाई मिरर ऐसा है तो इसका डायमीटर तो होगा, करेक्ट। स्फीयर का डायमीटर इज डिफरेंट, ये बड़ा वाला, लेकिन ये जो मिरर है, लेट मी मार्क इट विथ सम अनदर कलर टू डिफरेंशिएट। ये जो मिरर है ग्रीन कलर का,
इसका खुद का एक डायमीटर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज दिस ब्लैक लाइन। कहां से कहां तक? ये पॉइंट ए से ये पॉइंट सी तक। तो ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। अगर अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है मतलब हमने ये चुन्नू सा कट किया, छोटा सा ये मिरर कट किया, बहुत छोटा सा, तो ये अपर्चर देखिए कितना हो गया, सी और डी बहुत छोटा है। तो फॉर स्मॉल अपर्चर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ का मतलब एफ का डबल होता है। ओके, फिगर में देखते हैं। तो लेट मी क्लियर द बिफोर ड्राइंग। ओके, सपोज ये स्फेरिकल मिरर है, ये हमने मिरर कट किया जिसका पोल पी है, करेक्ट? ये इधर पॉलिश है, पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो जो फोकस है वो सपोज ये है एफ, ठीक है? फोकस, नॉट द फोकल लेंथ। तो सी पी जो है, सी पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, पी एफ मतलब पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? दैट इज नथिंग बट आर इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। सारे मिरर के लिए नहीं, फॉर दोज मिरर जिनका अपर्चर छोटा हो। स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल, स्मॉल मत भूलिएगा, जब तक वो मेंशन ना करे ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। स्फेरिकल मिरर जो कि जिनका अपर्चर बहुत स्मॉल है, उनके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। इतना क्लियर? ओके, तो कौन कौन से आपने 7 टर्म सीखी? पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, अपर्चर, और एक और छूट गया, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? ओके, तो इतनी सारी टर्म आपने सीखी, इनमें कुछ रिलेशन सीखा, करेक्ट? ओके, तो कुछ इसके जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? अगर मैं पूछूं कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, तो आपको बोलना है इट इज ऑन लेफ्ट। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? इट इज ऑन राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ओके ओके, सो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ व्हाट? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन तीनों में से विच वन इज ऑन द मिरर? तो इन तीनों में से कौन सा मिरर पे है? यस, इट इज पोल। क्वेश्चन 2 देखिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकस इज ऑन लेफ्ट, ट्रू है कि फॉल्स? फोकस इज लेंथ नहीं, लेफ्ट। ओके, सो इट इज फॉल्स क्योंकि उसका फोकस राइट में होता है। क्वेश्चन 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर is perpendicular to the mirror, true or false? True. Question 5, 4, 5 में जल्दी जम कर दिया। Okay, next question is कि for a small aperture, if focal length is 2 centimeter, so radius of curvature will be, yeah, it is small aperture, so radius of curvature is 2f, which is 2 into 2 means 4 centimeter. So radius of curvature is 4 centimeter. इतना clear? Okay. Now ये था जो हमने कुछ बेसिक्स पढ़े, किसके बारे में? मिरर के डेफिनेशंस, उनके फंडामेंटल टर्म्स। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम उनका रे डायग्राम और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ लॉज हमें पढ़ना पड़ेगा, देन साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला, देन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ये सब हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी ही।